everybody. So it gives me an immense pleasure to welcome you all to the today's session of CLAT Talk with Toppers, which has been organized by the BEducate. I, Advocate Sukhada Kotak, a faculty member here, feel truly honored to moderate and host this particular insightful session where I welcome Bhakti Nirgunda, who has successfully secured an admission into the one of the top law schools of India, that is Geetam University, Vishakhapatnam campus. Here, she is one of the brightest achievers of the Dombivli branch of PRUCare, who has cracked the CLAT exam with one of the outstanding rank and secured admission. So, this session is particularly designed to motivate, guide, and give you all the current aspirants a real world glimpse into what it takes to succeed into this highly competitive entrance exam. From the preparation strategies to the daily routines and how to overcome the self doubt to manage the time in the mock test, we are going to discuss it all. So, first of all, I would like to begin with this special session and a warm welcome to Bhakti as well to the session. So, Bhakti, I would like to know a little bit about you and what was your academic background before you decided to start for the CLAT examination? So, hello, ma'am. Myself, Bhakti Nirgunda, and I'm South Indian, but I live in Mumbai. I gave my CLAT examination at Mumbai only. So, my background was I was studying in 12th standard HSC, and at the same time, I was preparing for CLAT examination. Mhm. Okay. So, Bhakti, can you tell me when did you first decide to pursue law as your career and you decided to appear for the CLAT exam? Yes, ma'am. At the time of when I was at 10th standard, I was decided to pursue law. So I started researching about it. Which exam should I give? So I came to know about CLAT examination. So I decided at 10th standard only to give CLAT. Okay. So, it is probably a period since the 10th standard, your goal was to Yes. become a lawyer, which is a good thing, and Yeah. you made sure that Yeah. you are working hard for it. Okay. So, Bhakti, can you tell me what was your overall preparation strategy for the CLAT exam? क्या preparation आपने use करा? Strategy, subject wise strategy अगर आप बता सकते हो तो that will be beneficial. मैम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी इंग्लिश तो मेरी मीन्स अच्छी थी. आई वाज गुड एट इंग्लिश. सो इंग्लिश अच्छा था तो मेरा लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा हार्डवर्क लगता नहीं था. तो फिर प्रॉब्लम था जीके और मैथ्स में. सो जीके इट्स लाइक रोट लर्निंग, उसको मेमोराइज करना ही पड़ता है. उसको ना हम कोई ट्रिक से समझ सकते हैं ना ही कुछ आइडिया से समझ सकते हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग से. तो वो रोड लर्निंग जैसा था, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरा. अगर मैं जुलाई मंथ का पढ़ रही हूँ और आगे मैं चली गई अगस्त का, तो जुलाई का भूल जाती थी. सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था. एंड मैथ्स में थोड़ा सा, मैथ्स में लिटिल बिट आई एम वीक सिंस माय चाइल्डहुड ओनली. सो या, these two subjects were challenging for me. ओके. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तब आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है. सो Yes. हाउ इम्पॉर्टेंट वर मॉक टेस्ट इन योर प्रिपरेशन एंड आप कैसे मॉक टेस्ट अपियर किया करते थे एंड हाउ ऑफन डिड यू अपियर फॉर द मॉक टेस्ट? मैम, मॉक टेस्ट जो है स्टार्टिंग में एवरी 15 डेज एक मॉक टेस्ट होता था अपने ऑफलाइन में. एंड देन बीच में हमको डेट्स भी मिलते थे कि कब ऑनलाइन देना है. सो मॉक टेस्ट देते टाइम ना मैम बहुत ही माइंड को स्टेबल रखना पड़ता था. अगर हम किसी से आर्ग्यू करके आ रहे हैं, झगड़ा करके आ रहे हैं, तो फिर हम नहीं दे सकते मॉक टेस्ट एंड ऑल. हमारा माइंड जो है हमेशा स्टेबल और कूल रहना चाहिए मॉक टेस्ट देते टाइम. बिकॉज हम फोकस कर ही नहीं पाएंगे कि आर्ग्यूमेंट का क्या है. स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे. सो आधे घंटे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन एंड ऑल, थोड़ा सा माइंड को कूल रख के मॉक टेस्ट में दिया करती थी. एंड जैसे जैसे क्लैट एग्जामिनेशन का डेट आ रहा था, तो वीकली मॉक टेस्ट देना या फिर 5 डेज के बाद मॉक टेस्ट देना कंटिन्यूस ऐसे होता था. और थोड़ा सा मीन्स गैप रखना पड़ता था, बिकॉज हम जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो सब एनालाइज भी करना पड़ता था, राइट. सो दैट्स वाई.
करेक्ट, राइटली सेड भक्ति। मॉक टेस्ट का एनालिसिस एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर मॉक टेस्ट का यस। एनालिसिस नहीं किया तो नहीं समझ में आएगा कि कहाँ हमारा वीक पॉइंट्स है, कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, कौन से एरियाज पे यस। फोकस करना है, एटसेट्रा। राइटली सेड। यस। भक्ति, आई वुड लाइक टू नो कि आपने जैसे बोला यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल, तो हाउ डिड यू बैलेंस योर बोर्ड स्टडीज अलोंग विद द क्लैट एग्जामिनेशन? It was a little bit challenging for me because I can't handle both because both are important, 12th as well as CLAT examination. So मैंने थिंक किया कि फर्स्ट क्लैट पे फोकस करते हैं बिकॉज 5 महीने से भी कम वक्त था मेरे पास, तो मैंने पहले क्लैट के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और बीच में जो कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट्स वगैरह मिलते थे ना, वो मैं कर लेती थी। एंड देन मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना वही चलता था। एंड जैसे ही क्लैट खत्म हो गया, 2 मंथ्स का टाइम था मेरे पास, विच इज इनफ फॉर मी। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा ब्रेक लिया। बीच में 15 डेज तक कुछ पढ़ा नहीं बिकॉज थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए था। करेक्ट। सो 15 डेज के बाद मैंने अपना स्टार्ट किया प्रिपरेशन फॉर HSC। सो 1.5 मंथ्स के प्रिपरेशन में ही मैंने HSC दे दिया। ओके, फाइन। सो भक्ति, आई वुड लाइक टू नो कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे? जैसे आपने अभी बोला कि मैथ्स आपके लिए चैलेंजिंग थोड़ा रहा था, तो कौन यस। से यस। ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स थे और वो चैलेंजेस को आपने ओवरकम किस तरीके से किए? Ma'am, as I said, GK and maths is really difficult for me because GK is like rote learning. उसको रट्टा मारना ही पड़ता था। इट्स अ बिटर ट्रूथ बिकॉज उसके लिए कोई ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है, हमको बार बार रिवीजन करना पड़ता था उसका। सो रिवीजन कर करके मैंने जीके को ओवरकम किया जो भी प्रॉब्लम्स होते थे। एंड देन मैथ्स का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ता था। सो मेरा मैथ्स हमेशा से ही वीक है, आई एम लिटिल बिट वीक इन मैथ्स सिंस माय चाइल्डहुड। सो कंटिन्यू प्रैक्टिस करना। और मैं सबसे ज्यादा लाइक टाइम मैथ्स के लिए देती थी ताकि इम्प्रूव हो जाए। ओके। सो भक्ति, आप कौन से बुक्स और रिसोर्सेस के ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई करते थे फॉर योर प्रिपरेशन? मैम आप जो भी एजुकेशन ने रिसोर्सेस हमें प्रोवाइड किया है उसी से हम लोग पढ़ते थे, मैं पढ़ती थी। जैसे भी हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स थे बी एजुकेट के तरफ से। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अलग से, लीगल रीजनिंग के लिए अलग से। सो और ऑनलाइन में भी अलग अलग रिसोर्सेस है, जैसे कि सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट। और जो हमारा वीक पॉइंट है, जैसे कि अगर हमारा क्रिमिनल लॉ वीक होता है तो उसके लिए अपने आप जनरेट होता है एक टेस्ट। सो उसी यही सब रिसोर्सेस थे। ओके, फाइन। सो भक्ति, कैन यू टेल मी के एनी स्पेसिफिक टिप या कोई स्ट्रैटेजी कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, दैट इज आरसी, उसका स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, कैसे आरसी को जल्दी से डिकोड कर सकते हैं? मैम इसके लिए रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो सभी लोग कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा रीडिंग स्पीड हमेशा स्लो ही रहेगा। और न्यूज़पेपर लाइक दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस यही पढ़ते थे हम तो। और उसके बाद में बुक्स, कुछ भी नॉवेल्स वगैरह जो भी बुक्स रहेंगे, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो हमें प्रकाश सर कहते थे कि पढ़ने के लिए ताकि हमारा इम्प्रूव हो जाए। यस मैम, दैट्स इट। ओके, फाइन। सो भक्ति, आई वुड लाइक टू नो कि हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग द एक्चुअल क्लैट पेपर? Ma'am, I was prepared like 30 minutes for English and 10 minutes for GK, 40 minutes for legal reasoning and 30 minutes for logical, and then 10 minutes for maths. ये मुझे कैसे भी कर कर ये इतने टाइम में मैनेज करना ही था करके एक एम था, और मैंने वो कर लिया कैसे भी करके। ओके। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था बट यस, आई डिड इट वेल। Okay, fine, Bhakti. That's good to know. So, would you like to tell me what would be your three tips for the upcoming CLAT aspirants this year? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स को कुछ लोग बहुत
हल्के में ले लेते कि चलो स्किप कर लेते हैं। बट नो, मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कुछ लीगल में कुछ कम स्कोर हो गया तो मैथ्स कवर कर देता है। सो मैथ्स को कभी स्किप नहीं करना है। एंड देन एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैम, बिकॉज अगर हम एनालिसिस करेंगे ही नहीं तो समझेगा ही नहीं कि हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं। और इवन ये भी मैटर करता है कि हम मॉक टेस्ट के आधे घंटे पहले कर क्या रहे थे। अगर हम कुछ आर्ग्यू करके आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, तो फिर माइंड स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। सो माइंड को कूल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कूल करके नॉर्मल तरीके से अगर हम मॉक टेस्ट देंगे और अच्छे से लाइक एनालाइज करेंगे तो ही आप हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे स्कोर्स को। एंड थर्ड टिप इज रीडिंग। जितना हो सके रीडिंग, और छोटी छोटी डिटेल्स को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Great. Okay. So that are good points which you pointed out, Bhakti. And as we all know कि क्लैट की जो जर्नी होती है ये अप्स एंड डाउन से पूरी कवर्ड होती है। सो हो सकता है डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि देयर वर सम डाउन मोमेंट्स, एंड उस वक्त बहुत जरूरी होता है कि जो मेंटर्स होते हैं वो आपके सपोर्ट में रहे। सो कैन यू टेल मी कि आपने कैसा लो पॉइंट कभी फील किया था, एंड फिर उसके बाद आपने वापस खुद को मोटिवेट कैसे किया? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मोटिवेट करने के लिए तो ऑफ कोर्स टीचर्स रहते हैं, और सेल्फ मोटिवेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कितना भी मोटिवेट करे, अगर सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं है तो उसका कुछ यूज ही नहीं है। मैं सेल्फ मोटिवेशन भी लेती थी, और मैम पर आपका ही नाम लेना चाहूंगी मैं, बिकॉज आपने जिस तरीके से मोटिवेट किया वो लाइक बहुत हेल्पफुल था। बहुत डाउन फील होता था कि स्कोर्स स्टार्टिंग में तो ऐसे 20-15 ऐसे आते थे। जो बढ़ने के जो रीजंस है मैम वो तो आप भी हो। जो मीन्स जैसे आप अंडरस्टैंड करते हो स्टूडेंट्स को, उनके माइंड को जैसे आप रीड करते हो, सो या यू आर द मेंटर फॉर मी। Okay, good to hear that, Bhakti. So, यस। there are always sometimes जहाँ पे you feel down, but बहुत जरूरी होता है वो सारे challenges को overcome करके आगे बढ़ना. So, Bhakti, the last question is, how was your experience with B Educare? Did you enjoy your journey with B Educare? Yes, ma'am. I have learned so many things, not only about CLAT examination. I have learned so many things about how to live life also, especially by Prakash sir. He used to say how to live a life, not only studies, not everything. You have to live your life fully. Hmm. So हम पढ़ाई करते करते हम मजे भी करते थे, ऐसे कंटिन्यू बोरिंग लेक्चर्स नहीं होते थे कभी। Hmm. सो यही बहुत स्पेशल है बी एजुकेयर के बारे में। Okay, good to hear that, Bhakti. So I would like to congratulate once again for successfully getting admission into one of the well-known law schools of India. We wish you all the very best for your career. थैंक यू सो मच मैम।